सुपर स्पेशलिटी से मुनव्वर इस्लामी अस्पताल का नई अंदरूनी सहूलियात का इनोग्रेशन सदर इस्लामी अस्पताल और रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट फरहाद हकीम और MP सुदीप बंदोपाध्याय ने किया। इस मौके पर फरहाद हकीम ने कहा कि इस्लामी अस्पताल का G+10 का ख्वाब मेरे बड़े भाई मरहूम सुल्तान अहमद ने देखा था और आज ये पूरा हुआ। MP सुदीप बंदोपाध्याय ने भी एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मैं अपने MP फंड से 50 लाख रुपया इस्लामी अस्पताल में देने का ऐलान करता हूं। इस मौके पर उपस्थित थे मगरबी बंगाल के माइटी प्रेसिडेंट गुलाम रब्बानी, MLA नैना बंदोपाध्याय, वार्ड काउंसिलर रेहाना खातून और रेड रोड के ईदेन के इमाम कारी फजल रहमान भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं कि इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामिया अस्पताल के सदर वजीर फरहाद हकीम ने क्या कहा। আমরা ইসলামিয়া হসপিটালের নতুন করে উদ্বোধন করলাম। আপনারা জানেন যে মাঝখানে তৈরি হয়ে গেছিল, আমরা কয়েকটা ফ্লোর কোভিড হসপিটাল করেছিলাম চেরিং ক্রসের সহযোগিতা। তারপর কোভিড কমে যাওয়ার পরে এটা উঠে যায়। তারপর আমরা ICU, ITU, 3টে OT রেডি আছে, আরো 3টে 6টা 8টা OT আছে। টোটাল 8টার মধ্যে 3টে, এখনো 5টা OT আমাদের কাজ চলছে। ওগুলো ফেজ ওয়াইজ ঠিক হয়ে যাবে। আর এই ডিফিউমেশনের জন্য কিছুটা সময় লাগে, সেইটা যেই ডিফিউমেশন হয়ে যাবে আমাদের ওটিগুলো চালু হয়ে যাবে, ICU চালু হয়ে যাবে। আর আমরা 1 সপ্তাহ 1.5 সপ্তাহের মধ্যে এইগুলোকে এমার্জেন্সি আর এটা মেডিসিনটা আমরা চালু করে দেবো। আর সার্জারি ডিফিউমেশন হয়ে গেলেই আমাদের চালু হয়ে যাবে, চালু হয় না। প্রথমে চালু হলো আউটডোর, তারপরে এমার্জেন্সি চালু হয়ে যাবে 1 সপ্তাহের মধ্যে। লোকজন ঢুকলো, একটু ডিফিউম করতে হবে। তারপর আমাদের OT আর ICU, এইটা আমাদের বেশ কিছুদিন সময় লাগে ডিফিউম করে, ওদের কাছে ওরা এসে দেখবে যে ওর মধ্যে সার্টিফিকেশন করতে হবে। সেই সার্টিফিকেশন করলে ওটা চালু হয়ে যাবে। আর 1 সপ্তাহের মধ্যে আমাদের মেডিসিন ওয়ার্ডটা আমরা চালু করে দিচ্ছি। 32টা ICU বেড আছে, 32টা, আর 8টা OT আছে, আর প্রায় আমাদের বেড 12টা ডায়ালিসিস আছে, আর বেড হচ্ছে 180টা বেড। এই কার্ডটাই আমাদের মেন ইয়েটা স্বাস্থ্যসাথী কার্ডেই হবে, অ্যাডমিশনটা স্বাস্থ্যসাথী কার্ডেই হবে। আর স্বাস্থ্যসাথী রেটেই, যারা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেই, ধরুন বাইরের পেশেন্টেরও, তাকে স্বাস্থ্যসাথী রেটেই আমরা বিলিং করি। আর আপনারা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা এমন, যেটা মুখ্যমন্ত্রী নিজে বারবার করে বলছেন যে হেলথ কেয়ার ফর অল। এইটা যাদের গভর্নমেন্ট হসপিটালে চান্স পায় না, তারা স্বাস্থ্যসাথীর মাধ্যমে এই প্রাইভেট হসপিটালে করে। এটা যদিও সোসাইটি হসপিটাল, মানে আমাদের এটা সোসাইটি মিলে এই হসপিটালটা চালায়। এবং আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের MP সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যে তিনি নিজের থেকে বলেছেন যে 50 লাখ টাকা দেবেন MP ল্যাড থেকে। এবং নয়না বৌদিকেও উনি নিজেই বলেছেন যে 10-20 লাখ টাকা দাও। 10 লাখ টাকা এখনই দেবে, 10 লাখ টাকা পরে। জায়গা जिसका हेल्थ कार्ड है, जैसा हमारा मेडिक्लेम है बहुत हायर, इसलिए हमारा वहाँ पर हम तो इनकम टैक्स रिबेट मिलता है, तो हम स्वास्थ्य कार्ड नहीं किया, हमारा वो कार्ड है। और जो नहीं कर पाएगा सबके लिए हेल्थ फॉर ऑल। जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिला और फिर हमारा इलाज नहीं होगा, ये नहीं होगा। स्वास्थ्य कार्ड इसी के लिए अहमियत है, और मैडम ने बहुत इसका ऊपर सीरियस है। जो स्वास्थ्य कार्ड हॉस्पिटल को लेना पड़ेगा, और हम लोग शुरू ही कर रहे हैं स्वास्थ्य कार्ड का ही हॉस्पिटल है। হ্যাঁ, যে কোনো নিলে হবে। আর স্বাস্থ্যসাথীটা মানে যেহেতু মাস অ্যাপিল আমাদের সরকার করছে স্বাস্থ্যসাথী, তাই স্বাস্থ্যসাথী বললাম। যে কোনো মেডিক্লেম নিয়ে আসলে হবে। যার কাছে কোনো মেডিক্লেম নেই বলবে আমি ক্যাশ দেবো, পরে আমার ওটা পাবে, তা সেও হবে। যখন কোনো হেলথ কেয়ার সিস্টেম চালু হয়, সেখানে একটাই জিনিস দেখা হয়, যে এটা মানুষের হাসপাতাল। মানুষের হাসপাতাল যখন চিকিৎসা করা হয়, একটা ডাক্তার তখন দেখেন না তার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সেটা কখনোই দেখা হয় না। সে অসুস্থ, সে একজন মানুষ, সে মানবিক মুখ নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা হবে। এইটা যারা এইসব প্রশ্ন তোলেন, তারা মানবিকতাটাকে ভুলে যায়। এটা হয়েছে, হওয়ার পরে আমাদের প্রায় 12 কোটি টাকা মতন এটার খরচা হয়েছে, যেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার 3,75 লাখ টাকা দিয়েছে, আর বাদবাকি টাকাটা আমাদের CSR এর মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থা তারা দিয়েছে। जब तक बेड रहेगा स्वास्थ्य, अगर 100% होगा तो 100% होगा, ऐसा है रहेगा।
ये अस्पताल पूरी तरह चालू हो जाए उसके बाद वो भी एक बहुत अहम जगह में है, उसको भी हम लोग प्लान सैंक्शन कर दिए, करने गया है, ऑलरेडी गया है, उसको भी हम लोग एक्सटेंशन करेंगे ऊपर। उसमें 707 हो गया और वो तो ऑलरेडी 707 ले रहा है। वो इस्लामिया जो ये IMI जो है वो तो ऑलरेडी 707 ले रहा है, और यहाँ भी हम लोग अलग से काउंटर कर रहे हैं 707 का। इसके पास 707 कार्ड नहीं है और पैसा भी नहीं है, उसको कार्ड भी बनाने का हम लोग बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि मैडम ने कहा है जिसके पास 707 कार्ड नहीं है उसको भी 707 कार्ड बनाना पड़ेगा। ऐसा आप जानते हैं जो हमारा रॉक्सी में कलकत्ता कॉरपोरेशन के तरफ से हम लोग 707 कार्ड और आधार कार्ड दोनों का एक परमानेंट सेंटर खोल दिया है। रॉक्सी सिनेमा में जो भी जाएगा रॉक्सी हॉल में, वहाँ पर 707 काउंटर और आधार कार्ड ऐसी है, एनीवन कैन गो एंड अप्लाई एंड टेक दी कार्ड। পার্লামেন্টের ব্যাপারে সুদীপদার ব্যাপার, অল ইন্ডিয়া রাজনীতি আমাদের দলনেতা সুদীপদা এই কৃষি বিল নিয়ে বারবার আন্দোলন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় সুদীপদা করেছেন, সুতরাং এটা পার্লামেন্টারিয়ান কমিটির ব্যাপার, এটা আমাদের ব্যাপার। ইত্যাদি हमारे जो वजीर आला ममता बनर्जी ये एक पूरे हिंदुस्तान के सामने और पूरे दुनिया के सामने एक अलग पहचान बना ली है। कैसे करके इंसान के बीच में रहना है, इंसान की सेवा करना है और इंसान को अच्छा रखना है, ये आज तक कोई नहीं सोचा जो ममता बनर्जी सोची, जो एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल और फूड फॉर ऑल। पहले हम लोग कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, तो कपड़ा आज के दिन में सबके पास है, रोटी के लिए फ्री राशन सिस्टम ममता दी ने किया है, और मकान तो हम लोग का प्रोजेक्ट में हो रहा है। मगर उससे भी ज़्यादा जो अहमियत रखता है वो है तबीयत खराब होने से एक आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है और अगर नहीं मिलता उसे सीट तो फिर वो पागल की तरह दौड़ते रहता है। इसीलिए 707 कार्ड जो, हाँ हम गरीब हैं मगर जो भी बड़े हॉस्पिटल से बड़ा अस्पताल में भी हम अपने इलाज करा सकते हैं, इसलिए 5 लाख तक का हेल्थ मेडिक्लेम ये ममता बनर्जी सबके लिए की है। हम बहुत खुश हैं जो वो भरोसा हमारे ऊपर इन्होंने दी है, जो ये अस्पताल को नई तरह से बनाना, और ये सुद्दाम साहब का जो ख्वाब है उसे मैं मानता हूँ आज ये पूरा हुआ। क्या काम कर सकते हैं कराएंगे, ये उनके मर्जी के ऊपर है। हम इंसान हैं, हम कुछ नहीं, हम सिर्फ कठपुतलियाँ हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी में करते हैं, हमारे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िंदगी में आई है अपने मिल्लत के लिए हो और गैर मिल्लत के लिए हो, मैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ परवरदिगार का। एक हॉस्पिटल जब चलेगा कोई फंड का एंड नहीं होता है, हॉस्पिटल चलते रहता है और फंड का दरकारी होता है, क्योंकि ये सब हॉस्पिटल है, ये सब्सिडाइज हॉस्पिटल है, ये एपोलो का तरह या बड़ा अस्पताल का तरह प्रॉफिट मेकिंग हॉस्पिटल नहीं है। ये जो है ये सोसाइटी एक्ट में ये हॉस्पिटल बना हुआ है, इसका मतलब है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से अगर कुछ रोजगार भी होगा तो ये हॉस्पिटल में उसको खर्चा करना पड़ेगा और नया नया रेगुलर इंस्ट्रूमेंट लगेगा। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करने के बाद उसे फेंक देना पड़ता है, नया इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ता है, OT इंस्ट्रूमेंट स्पेशली, तो ये तो खर्चा लगते रहता है। और सुदीप दादा का रहा हमारा अगर MP है तो फिर परवाह क्या चीज़ है। ये हॉस्पिटल कैसे बनेगा और कैसे कब तक होगा, ये सोच फिक्र में हम लोगों जो ये हालात बन चुके हैं, तब अल्लाह ताला ने किसी न किसी फरिश्ते को जो है बिराद आकिब के जरिए से उनको भेजा और उन्होंने दीदी को रफ्ता करके 3,75 लाख रुपया वो किया, प्लस CSR फंड से लेके बहुत उनके ताल्लुकात वाले ऐसे कंपनी हैं उनको उन्होंने कहा कि भाई CSR फंड आप दीजिए और ये हॉस्पिटल को मजबूत कीजिए, जो हॉस्पिटल चालू कर सके। पेंडेमिक का मौका था, पिछले साल हम लोगों ने पेंडेमिक के लिए 100 बेड का चालू भी किया था, उसके बाद हम लोगों का काम चालू रहा, रफ्ता रहा और सही तरीके से आज हम लोग 3 OT चालू कर चुके हैं, 5 OT जो 6th फ्लोर में है, इंशाअल्लाह वो भी जल्द से जल्द चालू होगा। और अगला महीने से जो आपको फिराद हकीम साहब प्रेसिडेंट है, सदर साहब ने कहा कि हम लोग यहाँ अगले महीने से चालू करेंगे, जो
मेडिसिन और इमरजेंसी जहां प्रॉब्लम होगा वो हम लोग चालू करेंगे। डॉक्टर एमएन हक के निगरानी में, वो हमारे सुपरिटेंडेंट हैं, वो उनके निगरानी में चालू है। दूसरा बन चुका है, दूसरा नहीं तीसरा भी बनेगा। अल्लाह के जात पर भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह चाहे जिससे काम ले ले। और ये 7 पॉइंट वाला जो हॉस्पिटल है वो भी 15 कट्टा है। मैं मेयर साहब का शुक्रगुजार हूँ। 1 करोड़ 27 लाख रुपया उन्होंने टैक्स माफ किया है विद सर्टिफिकेट, ये हॉस्पिटल के लिए भी और वो भी हॉस्पिटल के लिए भी। उसके बाद 8 कट्ठा जमीन हमारे पार्क स्ट्रीट मोड़ में वो है, वो भी मदर एंड चाइल्ड केयर का वो हॉस्पिटल इंशाल्लाह उसको भी हम लोग बनाएंगे। पहले हम लोग 7 पॉइंट बनाएंगे, उसके बाद वो बनाएंगे। सोच पाएगा कि इस्लामिया हॉस्पिटल में क्यों नहीं 707 किया जाए। इसी वजह से इस्लामिया हॉस्पिटल में हमने IMI में ऑलरेडी 707 का अप्रूव मिल चुका है, पोर्टल चालू हो चुका है। इंशाल्लाह अगले महीने से आप एडमिशन करा सकते हैं 707 में। अब यहाँ का जो है हमें हेल्थ के तरफ से जो है हमें परमिशन मिल चुका है। इंशाल्लाह अब हम लोग 707 का अप्लाई करेंगे, जितना जल्द से जल्द हो इसको भी हम लोग अप्रूव करा के यहाँ चालू करना चाहूँगा ममता बनर्जी का और हमारे जितने टीम, हमारे अमीरुद्दीन बॉबी साहब का, हम लोग सब मिलकर ये जो ख्वाब हम लोगों का था, ये जो सपना था, उसको आज हम लोगों ने पूरा किया है। और आने वाले दिन इंशाअल्लाह जिस तरह से हम लोग काम करते आए हैं मिलजुल कर, सब मिलकर, आने वाले दिन भी इस तरह से हम लोग मिलकर काम करेंगे। लोगों का जो सेवा, जो खिदमत है, अभी हमारे प्रेसिडेंट फिराद हकीम साहब ने कहा कि 707 के ऊपर में हम लोग ज़्यादा तवज्जो और ध्यान देने जा रहे हैं, क्योंकि 707 जिनका है उनको 100% हम लोग यहाँ एडमिशन लेंगे। उसके साथ साथ हम लोग जिनका 707 नहीं है उनका भी यहाँ एडमिशन करने के बाद में एक स्पेशल काउंटर बनाकर वो 707 का कार्ड भी बना दिया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों का इस्लामिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो पाकसर का 7 पॉइंट में है, वहाँ ऑलरेडी 707 हम लोगों को चालू हो गया है। 707 के पेशेंट जो अब हम लोग भर्ती करना वहाँ चालू करने जा रहे हैं। मेरा जो ये जो है ये OT एकदम समझ लीजिए स्पेशलिस्ट एकदम है, मतलब वो समझ लीजिए कलकत्ता में, बंगाल में वन ऑफ द बेस्ट OT है। और ये पूरा टोटल OT हम लोगों ने जो 8 OT हम लोगों ने बनाया, जिसमें से अभी 3 एकदम ऑपरेशन में चालू हो गया है। और ये OT जो है ये मॉड्यूलर OT किया गया है। मैनेजिंग कमेटी जैसा चला रहे थे, जैसा ट्रस्ट चला रहे थे, वैसे चलेगा और आने वाले दिन भी वैसे चलेगा। ये आप लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि कोविड के वक्त उस वक्त हम लोगों ने चेरी क्रॉस को दिया था वो चलाने के लिए फॉर द टाइम भी, और वो चार्जेस वगैरह जो है वो भी बहुत नॉमिनल, यहाँ तक कि चार्ज नहीं लिए थे उस वक्त उन लोगों ने। और 707 में उन लोगों ने इलाज भी किया है। और कोविड में हम लोगों ने उस वक्त बहुत अफरा तफरी का माहौल था, लोग एडमिशन के लिए भाग रहे थे। हम लोगों ने ये सोचा, फिराद हकीम साहब ने ये सोचा कि क्यों नहीं, कोविड के वक्त है, लोगों का हम लोग जितना भी चाहे खिदमत करें, और जो मेडिकल उनका हेल्प है, मदद हम लोग ने इस्लामिया हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ। हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे इज़्ज़त माफ़ वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी का, हमारे मेयर जनाब फिराद हकीम साहब का, और हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब अमीरुद्दीन बॉबी साहब, और हमारे तमाम कमेटी मेंबर्स और डोनर्स और जो स्टाफ्स हैं, इन तमाम लोगों ने बहुत मेहनत करके इस्लामिया हॉस्पिटल को आज इस पैमाने में पहुंचाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस्लामिया हॉस्पिटल आने वाले दिन में वन ऑफ द लीडिंग मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक कलकत्ता में होगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो मैनेजिंग कमेटी है, हम पे तमाम अरकान ने पूरी मेहनत की है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस्लामिया हॉस्पिटल आने वाले दिन में हर दिन एक नए बुलंदी तक जाएगी। उसके ऊपर मेहनत कर रहे थे, और इंशाअल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस्लामिया बहुत तरक्की करेगा। और काफ़ी हम लोग हॉस्पिटल में बेड्स है, आप देख रहे होंगे काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मशीन्स है, ICU यूनिट है। आज देखें आप सुदीप दा आए थे, सुदीप दा ने ऊपर एक ICU यूनिट दिया है। बॉबी हकीम हमारे हैं, फिराद हकीम बॉबी भाई जो हैं हमारे, उन्होंने आपकी टोटल बिल्डिंग पर हमारी ममता बनर्जी से 3,75 लाख रुपए जो सेंक्शन करवाया है। यही हम बोलेंगे कि भाई
हम लोग कोशिश किए जा रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा काम होगा। और हमारे बॉबी भाई भी हैं, अमरुद्दीन बॉबी भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, राजू भाई हैं और हमारी पूरी टीम है, डॉक्टर्स टीम है, डॉक्टर इकबाल है। देखिए ऐसा है कि लोग चाह रहे हैं कि इस्लामिया डेवलप करें, इसी पर हम लोग चाह रहे हैं कि इस्लामिया डेवलप करें और हम लोग बहुत खुश हैं। आप देखे होंगे एक पाक सर्कस इंस्टीट्यूट है जिसमें वहाँ भी हम लोग का है। तो हम लोग चाह रहे हैं इस्लामिया जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें और लोगों का हम लोग खिदमत कर सकें। और इसमें हमारा कोई ये नहीं है कि गरीब हो या मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई रात बात नहीं है, सबके लिए ये इस्लामिया खुला हुआ है। आज जैसे हमारे फराद हकीम साहब बॉबी भाई भी बोल रहे थे कि नहीं इस्लामिया सबके लिए है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एक अच्छा हॉस्पिटल को रेनोवेट करके बना रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग इसमें अच्छा से अच्छा काम करेंगे और फंडिंग हमारे ममता बनर्जी भी करेंगी और बाकी लोग जो वेल विशर है वो जरूर करेंगे।